Good afternoon, dear students. Welcome to DRCJ Home Class, our digital initiative by Director School Education Jammu. And as you know, we had taken from class 10 poetry section these days, and हमने इसके अलग अलग जैसे नेचर के बारे में कुछ पोइम्स हैं उनको टच किया है हमने। हार्शनेस ऑफ सनो देखा, हमने पोइम्स देखी जिसमें लव है, इमोशंस हैं। तो आज एक और खूबसूरत ह्यूमर वाली पोइम भी हमने देखी। हम एक पोइम देखेंगे आज, डिफरेंट टाइप की पोइम है। रिटन ये डी.एच. लॉरेंस ने लिखी है। पोइम का नाम है लॉस्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून, रिटन बाय डी.एच. लॉरेंस। आज हम देखेंगे कि इसमें क्या लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून से ही आपको पता चल गया होगा कि पूरे दिन में जो सबसे लास्ट वाला पीरियड है उसके बारे में लिखा हुआ है। यानी एक टीचर है, वो लास्ट वाला पीरियड ये पढ़ा रहा है और अभी लिख रहा है इसके बारे में। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यशु आहिस्ता आहिस्ता चीख, English writer and poet. His collected works represent, among other things, an extended reflection upon the dehumanizing effects of modernity and industrialization. Some of the issues Lawrence explores are sexuality, emotional health, vitality, spontaneity, and instinct. E.M. Forster has said about this D.H. Lawrence, the greatest imaginative novelist of our generation. यानी E.M. Forster ने कहा है। तो the major works Sons and Lovers, Rainbow, Woman in Love, done by this great poet. The theme of this poem is like this, that Lawrence, the last lesson was published, Lawrence Love Poems. It is one of the 3 sections in the volume titled The Schoolmaster. This analysis is concerned with the definitive 2 stanzas version of afternoon in the class, the last lesson. There is a longer 6 stanza version later revised by Lawrence as well, right? Lawrence creates a pessimistic and drained mood in afternoon in school, the last lesson, as the teacher speaks contents with a class of careless. It means he is teaching in a class where his students are careless. They are not willing to learn more, and he is in the class, and it is last period he is teaching in the school, and he wants to get that class as soon as possible closed. And because his students, he thinks that his students are not going to they don't want to learn more. So हम इसी पोएम को आगे अभी करेंगे थोड़ा। तो सबसे पहले जो पहला कुछ लाइन्स हैं इनको हम एक रीडिंग कर लेते हैं। When will the bell ring and end this weariness? How long have they tugged the leash and strained apart? My pack of unruly hounds, I cannot start them again on a quarry of knowledge they had to hunt. I can howl them and urge them no more. Right? तो ये पोएम है। पोएम का पहला एक स्टेंजा का पार्ट है। तो वैन विल, कुछ लाइन्स हैं, पूरा स्टेंजा नहीं है। वैन विल द बेल रिंग, ये इंतज़ार कर रहा है कि कब ये बेल बजेगी। एंड दिस वेरीनेस, और ये जो टाइडनेस है, वेरीनेस मीन्स कि यहाँ पे टाइडनेस, थका हुआ है ये टीचर, और ये ख़त्म हो जाए, मेरी थकावट जो ख़त्म हो जाए। वैन विल बेल रिंग एंड दिस वेरीनेस, तो यहाँ पर बोलता है कि कब घंटी बजेगी और मेरी जो थकावट है ख़त्म होगी। तो इस लाइन में एक तो रियोटिकल क्वेश्चन भी आता है और दूसरा एलिट्रेशन भी आता है, WWW, आपने देखा होगा, मैंने ब्लेक से इसको किया हुआ है। तो वैन विल द बेल रिंग एंड एंड दिस वेरीनेस, इसका मतलब हम पहली लाइन से बता सकते हैं कि टीचर तंग आया हुआ है और वो चाहता है, वो थका हुआ है, वो चाहता है कि कब जल्दी घंटी बजे। अब क्यों ये घंटी बजने का इंतज़ार कर रहा है, थोड़ा हम देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग हैव दे टग्ड द लीश, हाउ लॉन्ग हैव दे टग्ड द लीश एंड स्ट्रेन्ड अपॉट माई पेक ऑफ अनरूली हाउंड्स, आई कैनॉट स्टार्ट। अब क्या बोलता है, माई पेक ऑफ अनरूली हाउंड्स, एक मेटाफोर यूज किया कि मेरा पेक, पेक मतलब कि मेरे पास जो बच्चे हैं, अनरूली हाउंड्स हैं। हाउंड्स होता है, हाउंड्स यहाँ पे क्या होता है, जो हंटिंग डॉग्स होते हैं। अनरूली, दे आर रूड, दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो द रूल्स, राइट? एंड दीज हाउंड्स, दीज डॉग्स, they how long they tugged the leash, how that means how long the teacher pulled them with rope, कि कब तक they don't want to learn, they don't want to get knowledge, और मैं कब तक उनको ज़बरदस्ती खींच के रखूं। them again on a query of knowledge,
दे हेट टू हंट। अब क्वेरी मतलब क्या होता है कि वो शिकार ही नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर अनरूली हाउंड्स जब यूज़ किया है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्वेरी का मतलब प्रे भी होता है, प्रे मतलब होता है शिकार। अब वो यहाँ पे शिकार नहीं करना चाहते। कौन नहीं करना चाहता शिकार? बच्चे। किसका शिकार नहीं? शिकार मतलब क्या कि वो यहाँ पर नॉलेज हासिल करने की उनकी कोई इच्छा ही नहीं है, वो अपने नॉलेज को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। दे हेट टू हंट, यानी उनको शिकार करने से नफरत है। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं आप कि वो उनको नफरत है कि वो ज़्यादा नॉलेज हासिल करें, उनको वो ज़्यादा नॉलेज हासिल करना ही नहीं चाहते, यानी वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। और मुझे बोला गया है कि ये लास्ट पीरियड अब उनको पढ़ाइए। मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैंने उनको पढ़ाना है, बट दे हेट टू हंट, उनको पढ़ना नहीं है। आई कैन हाउल देम एंड अर्थ देम नो मोर। I can howl them. That means I cannot draw them. I cannot force them to learn. I cannot force them to get knowledge. अब मैं ज़्यादा उनको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। That means वो boys, the students had been compared with the unruly hounds, compared with the dogs hunting dogs. But he said that I cannot strain them, I cannot pull them, I cannot draw them, I cannot force them to get knowledge. I cannot force them मैं ज़बरदस्ती उनके दिमाग में नॉलेज या एजुकेशन या जो पढ़ाई है नहीं डाल सकता। दूसरी, आगे बढ़ते हुए कुछ और वर्सेस हैं इसमें। नो लॉन्गर नाउ कैन आई एंड्यूर द बर्न्ट। नो लॉन्गर नाउ कैन आई एंड्यूर द बर्न्ट। अब थक गया है, अब ये थक गया है, इसकी हिम्मत खत्म हो गई। अब बोलता है अब मैं बियर नहीं कर सकता, बियर द ब्रेंट, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। और of the books that lie out of the desk a full 3 score। of the books, उनके सामने जो किताबें पड़ी हुई हैं उनके डेस्क के फुल 3 स्कोर। एक स्कोर होता है 20 का, तो 3 स्कोर हो गया 60। दैट मीन्स कि ही हैड 60 स्टूडेंट्स बिफोर हिम। ऑफ सेवरल इंसल्ट्स आर ब्लॉटेड पेजेस। अब ये इंसल्ट्स बोलता है। इंसल्ट मतलब कि अपनी insult of he felt offended. Why? Because they had blotted pages. Blotted means their pages are spotted, they are not clean, they had not done their homework very clean, neat, but they are blotted. And scrawl means that is very untidy, very poor writing they had done on these books, on their notebooks. Of slovenly work they have offered me, क्योंकि वो जो काम उनने मुझे ऑफर किया बहुत ही गंदा है, बहुत ही अनटाइडी है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है? ऑफ सेवरल इंसल्ट, तो इन सब चीज़ों को वो अपनी इंसल्ट बोलता है। ही फील्स ऑफेंडेड, ही फील्स इंसल्ट बिकॉज दे शोन हिम, the students, 60 students had shown him blotted pages, scrawl under not clear handwriting, and very untidy homework they had offered to their teacher. I'm sick, the teacher said, I'm sick, मैं बहुत दुखी हूँ या तकलीफ में हूँ। And what on earth is good of it all? फिर एक रियॉर्टिकल क्वेश्चन है कि इससे धरती के ऊपर इससे मतलब क्या हो सकता है, इससे बुरा क्या और हो सकता है कि जो मेरे साथ हो रहा है। What good to them are me, उनके लिए क्या अच्छा है या मेरे लिए क्या अच्छा। I cannot see, बोलता मैं इसको देख नहीं सकता, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उनके लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या अच्छा है। इतना ऑफेंडेड ये फील कर रहा है, यानी एक पैसिमिस्टिक पोएम, जैसे हमने पहले ही बोला कि एक पैसिमिस्टिक पोएम है, because he is not able to encourage, or you can say inspire, you can say motivate, you can say force them to that study further। क्या है भाई? Shall I take my last dear fuel of life to heap on my soul? Shall I take my last dear fuel of life to heap on my soul, and kindle my will to a flame that shall consume their dross of indifference, and take the toll of their insults and punishments? I will not, I will not. Shall I take my last dear of, यानी जो क्या मैं अपनी एनर्जी, dear fuel of life, जो मैं अपनी एनर्जी है, क्या मैं उसको यूज़ करूं, क्या मैं उसको खर्च करूं? Shall I take my last dear fuel of life to heap on my soul? जो मेरी, अब ये बोलता है कि एक मेरी एक आत्मा भी है, एक इसका एक कॉन्शियस भी है कि ये बेकार, ये मतलब विदाउट वर्क भी यहाँ से जाना नहीं चाहता,
लेकिन ये बोलता है कि क्या मैं अपनी ये जो एनर्जी है इसको यहाँ पे ज़ाया भी नहीं कर सकता, ये यहाँ से जा भी नहीं सकता क्योंकि इसकी सोल इसको परमिशन नहीं देती है। लेकिन वो अपनी एनर्जी को यहाँ पर अगर वो पढ़ाता है यहाँ पर तो उसको लगता है कि ये सारी बेकार है क्योंकि उनको पढ़ने का कोई मन करता ही नहीं है। एंड किंडल माई विल टू अ फ्लेम दैट शैल कंज्यूम, किंडल मीन की इनफ्लेम, माई विल टू फ्लेम दैट शैल कंज्यूम, कि इनको मैं मतलब एंड किंडल माई विल कि इनफ्लेम माई विल टू अ फ्लेम दैट शैल कंज्यूम, कि वो आगे उसको कंज्यूम करें, मैं उनको समझाने की कोशिश करूं, मैं उनको मोटिवेट करने की कोशिश करूं, लेकिन वो आगे से उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। देयर ड्रॉस ऑफ इंडिफरेंस, देयर ड्रॉस ऑफ इंडिफरेंस एंड टेक द टोल, देयर इज ड्रॉस ऑफ इंडिफरेंस, इंडिफरेंस मीन्स कि दी ऑल द स्टूडेंट्स बिफोर हिम आर नॉट अलाइक, they are like they are yani they have different, they have indifference, they have different individual differences among all the students, which is usual, and their dross of indifference there, and he said their indifference is very dross, or you can say impure, or you can say filthy या garbage से भरा हुआ, ठीक है। एंड ऑफ देयर इंसल्ट्स इन पनिशमेंट ऑल आई विल नॉट, कि वो जो उनको जो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उनको जो बैठने का मन नहीं कर रहा, वो जो मेरे वो ये अपने लिए क्या समझ रहा है कि इंसल्ट है, पनिशमेंट है मेरे लिए, मैं उसको नहीं करूँगा। तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया हमारी पोएम का। तो सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस पोएम की जो टोन है, इट इज़ द राइटर्स एटीट्यूड एंड मूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट आर ऑडियंस, ये राइटर का एटीट्यूड अपने सब्जेक्ट्स की तरफ है। इन द पोएम द मूड इज पैसिमिस्टिक, तो क्या कह सकते हैं, आशावादी होता है ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक होता है निराशावादी, यानी पैसिमिस्टिक यानी इसको कोई उम्मीद नहीं है, होपलेस है, ठीक है। रियोटिकल क्वेश्चंस कुछ यूज हुए हैं, जैसे हमने बोला व्हेन विल द बेल रिंग एंड एंड दिस वेरीनेस। मेटाफर कुछ यूज हुए, माई पेक ऑफ अनरूली हाउंड्स, जहाँ पर जब टू डिस्क्राइब अनविलिंगनेस ऑफ स्टूडेंट्स टू एक्वायर नॉलेज, जब हम व्हेन वी कंपेयर टू डिफरेंट एंटिटीज और डिफरेंट आइडियाज़, तो उसको हम बोलते हैं मेटाफर। तो सम न्यू वर्ड्स जो हमने कुछ डिस्कस भी किए, जैसे वेरीनेस है, एक्सट्रीम टाइटनेस, टग द लीस्ट टू पुल एट सम बॉडी थिंग रिपीटेडली, स्ट्रेन अपॉर्ट, मेक एन इंटेंस एफर्ट टू ब्रेक अवे, ठीक है, यानी कोई बड़ी कोशिश करना। अनरूली हाउंड्स, अनकंट्रोलेबल डॉग्स, क्वेरी ऑफ नॉलेज, नॉलेज दैट इज हंटेड, जिसके लिए हम कोशिश करें नॉलेज हासिल। 3 स्कोर 60, ड्रॉस ऑफ इंडिफरेंस, अनविलिंगनेस दैट इज वर्थ नथिंग, यानी उनका वो कोई मर्जी नहीं है उनको पढ़ने की। इंसल्ट, डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क आर एक्ट, उसको हम बोलते हैं इंसल्ट। तो यहाँ पर भी बोल सकते हैं, यहाँ पर नीचे अगर आप देखें, हीप का मतलब पाइल, किंडल का मतलब इनफ्लेम, राइट। और यहाँ पर एक और पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है जिसको हम बोलते हैं एनजैम्पमेंट। एनजैम्पमेंट वो क्या होता है, जब हमारी लाइन जो है एक लाइन में ख़त्म नहीं होती है। अगर आप यहाँ पर देखें, आई एम सिक, यहाँ पर देखें, एंड स्क्रॉल ऑफ सलाउनली वर्क दे हैव ऑफर्ड मी, यानी ये दूसरी लाइन में भी जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप पहली लाइन में नो लॉन्गर शैल आई स्टैंड अपॉर्ड ऑफ द बुक्स दैट लाई आउट ऑन द डेस्क, तो यहाँ तक ये पहली लाइन, जब तक ना हमारा कॉमा फुल स्टॉप लगे तब तक हम नहीं मानते कि ये लाइन ख़त्म हुई। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लाइन और कामा जो है ये दूसरी लाइन या तीसरी लाइन में ख़त्म होता है। तो इस जब ये पोइटिक डिवाइस यूज़ करता है कोई भी पोइट, तो उसको बोलते हैं एनजैम्पमेंट। फोर्सेस अ रीडर डाउन टू द नेक्स्ट लाइन एंड द नेक्स्ट, ठीक है। ब्लॉटेड मीन्स मेक अ स्पॉट, स्क्रॉल पुअर, स्क्रॉल मीन्स पुअर राइटिंग, poor writing, and slovenly means untidy, right? And here howl means draw, urge, force. Draw, urge means force. Query means pray or vastness of knowledge. Tug the leash, pull hard from rope, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ठीक। तो दिस वाज टुडे फॉर टुडे। तो आज आप क्या करें कि ये जो पोइटिक डिवाइस और डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमने इसमें किए हैं ऐड, तो इनको आप नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरी पोएम को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू एंड होप कि आप सारा होमवर्क कंप्लीट करते होंगे और आप पूरा पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का। और जैसे कि ये अब कम्युनिटी में आपका कोविड आ गया है,
कोरोना आ गया है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा मिलना जुलना कम, जब भी बाहर निकलें तो ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो बाहर निकलें, वो भी मास्क लगाकर, और पूरे जो दिशा निर्देश निर्देश गवर्नमेंट के दिए हुए हैं उनका पालन करेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।